اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آسمانی تجوری کے نمبر کے بارے میں۔ جی ہاں دوستوں، آپ نے بالکل صحیح سنا، آج ہم بات کریں گے آسمانی تجوری کے نمبر کے بارے میں، اور ان نمبرز کا استعمال کر کے آپ 3 دن میں اپنی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو چاہیے، دولت، محبت، عزت، شہرت، اس نمبر کے ذریعے وہ مل سکتی ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ نمبر آپ کے لیے دولت کے انبار لگا دے گا، اور پوری دنیا میں، پوری کائنات میں یہ دولت کا ایک ہی کوڈ ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے، اور اس کو کب اور کس وقت استعمال کرنا ہے، اور وہ کون سے 3 خاص دن ہیں جس میں ان نمبرز کا استعمال کرنا ہے۔ اور دوستوں، اگر آپ اپنے برج کے اسم اعظم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا برج لکھیں اور ساتھ میں لکھیں اسم اعظم۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کے برج کا اسم اعظم بتائیں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلو دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ دولت کا خاص کوڈ کون سا ہے۔ دوستوں، ایسٹرولوجی کی بات ہو اور نیمرولوجی کی بات نہ ہو، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ ایسٹرولوجی میں بھی ہم نیمرولوجی کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ نمبرز کا ہماری زندگی میں بہت اہم رول ہے۔ نمبرز ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں 5 luckiest zodiac sign، 3 luckiest zodiac sign، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے 5 نمازیں اور گھڑی کے 12 گھنٹے، یہ سب نمبرز ہی ہیں۔ نمبر سے آپ اپنی زندگی میں پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ چلیں دوستوں، غور سے سنیے گا، اب میں آپ کو دولت کا کوڈ بتانے والا ہوں، اور وہ نمبر ہے 789۔ اب اس دولت کے کوڈ کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا طریقہ کار بہت غور سے اور بہت دھیان سے سمجھیے گا۔ بہت آسان سا طریقہ ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی بات مس نہ ہو جائے، کوئی بات رہ نہ جائے۔ آپ ان نمبرز کا استعمال کر کے اپنی زندگی میں خوشیاں لا سکیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب اس ویڈیو پر آ ہی گئے تو اس ویڈیو سے کچھ حاصل کر کے جائیں، کچھ فائدہ اٹھا کے جائیں، کچھ سیکھ کر جائیں، جس سے آپ کی زندگی میں خوشحالی آ سکے، اور اس ویڈیو میں دی گئی معلومات سے آپ اپنی زندگی کو ایک بہتر ٹریک پر لا سکیں۔ دوستوں، میں نے جو آپ سے دولت کے کوڈ کے بارے میں ذکر کیا 789، اور آپ سے کہا کہ یہ پوری دنیا میں دولت کا ایک ہی کوڈ ہے، تو یہ کس طرح سے؟ چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ 789، ان 3 ڈیجٹس کو جب ہم سم اپ کریں گے اور ایک ڈیجٹ پر لائیں گے تو یہ نمبر بنتا ہے 6۔ اور جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی کہا کہ یہ دولت کا ایک ہی کوڈ ہے۔ دنیا کے کسی بھی اسکول آف تھاٹس میں چلے جائیں، ویسٹرن میں، ایسٹرن میں، ویدک میں، تو آپ کو دولت کا ایک ہی کوڈ ملتا ہے، اور وہ کوڈ ہے 6۔ اور اس نمبر 6 کو بھی مختلف ڈائمنشنز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 789 = 6، یہ بھی 6 ہوتا ہے، 708 بھی 6 ہوتا ہے۔ دوستوں، نمبر 7 کیا ہے؟ 7 نمبر ہے آپ جو سوچتے ہیں، آپ کی امیجنیشن، آپ کی سوچ۔ 7 نمبر انٹیوشن کا نمبر ہے، روحانی نمبر ہے، جیسے 7 آسمان، 7 زمین، 7 سمندر۔ 7 نمبر وہ ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول ہو جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، یہ کام اس طرح سے ہو جائے، یہ کام اس طرح سے ہو جائے، یہ ہوتا ہے 7 نمبر۔ اور نمبر 8 کیا ہے؟ نمبر 8 ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اچھا کرو گے اچھا رزلٹ ملے گا، برا کرو گے برا رزلٹ ملے گا، جیسا آپ گمان کریں گے ویسا ملے گا۔ اور نمبر 9 کیا ہے؟ 9 نمبر ہے انسانیت کا نمبر، 9 نمبر ہے لوگوں میں خیر بانٹنے کا نمبر، اور 9 نمبر ہوتا ہے روحانیت کا نمبر، ٹیچنگ کا نمبر۔ یہ ہوتا ہے 789۔ اور ان نمبرز کا ٹوٹل کرنے پر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ ان کو پلس کرنے پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 آتا ہے۔ اب 6 نمبر کیا ہے؟ 6 نمبر ہر اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو انسان چاہتا ہے۔ مثلا ہر انسان دولت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، ہر انسان فیملی چاہتا ہے،
नेक औलाद चाहता है, हर इंसान लव चाहता है, दौलत लग्जरी चाहता है, हर इंसान ब्रांडेड चीजें चाहता है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, कंफर्ट ऑफ लाइफ, बेहतरीन जिंदगी। ये तमाम चीजें ही हर इंसान की जरूरत भी होती हैं और हर इंसान इन चीजों की डिजायर भी करता है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, और अगर कोई कहता है तो गलत कहता है, क्योंकि एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हर इंसान को इन सब चीजों की जरूरत होती है और हमें ये सब चीजें अल्लाह ताला से मांगनी भी चाहिए। किसी की खिदमत करने के लिए भी पैसे ही की जरूरत होती है, अल्लाह की राह में देने के लिए भी पैसों ही की जरूरत पड़ती है। मसलन किसी की बेटी की शादी करवानी है, कोई सदका और खैरात करना है, कोई मस्जिद बनवानी है, इसलिए अगर हमारे पास पैसा होगा तभी हम ये सब कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी खुद की जरूरियात पूरी करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होगा तो फिर हम कैसे अल्लाह ताला की राह में खर्च करेंगे। इसलिए हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए और दिल खोल के मांगना चाहिए, और हमें अल्लाह ताला से उसकी शान के मुताबिक मांगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे अल्लाह ताला मुझे पूरी जिंदगी दाल रोटी दे, मैं दाल रोटी पर ही खुश हूँ, तो अगर वो ऐसा करता है तो वो गलत करता है, क्योंकि अल्लाह ताला तो खुद फरमाता है कि मुझसे मांगो, और अल्लाह ताला मांगने वाले से खुश होता है। इसीलिए हमें अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की शान के मुताबिक मांगना चाहिए, क्योंकि वो तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, यानी हर शय पर कादिर है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये मांगें और ये ना मांगें। अल्लाह ताला से जो भी आपकी जरूरत है अल्लाह ताला से मांगें। दोस्तों, इसको आप यूं समझ लें कि दुनिया में भी अगर हमें किसी शख्स से पैसों की जरूरत पड़ जाए तो हमें मालूम होता है कि वो कौन सा शख्स है जो कि हमारी मदद कर सकता है। हमें पता होता है कि ये शख्स मेरी मदद 2000 या कुछ रकम से ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा शख्स वो है जो मेरी मदद लाख रुपए भी कर सकता है। मुझे मालूम है उसके लिए 2000 तो क्या 1 लाख रुपए देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए 1 लाख रुपए ऐसे ही हैं जैसे किसी को 1000-2000 रुपए दे दिए। हमें मालूम होता है कि सामने वाले की हैसियत क्या है, हमें उसके स्टेटस का मालूम होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला तो पूरी कायनात का मालिक है। तो इसलिए दोस्तों, हम अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए इंसान के पास तो चले जाते हैं, लेकिन वही मदद हम अल्लाह से नहीं मांगते। इसीलिए हमें सबसे पहले अल्लाह ताला से मांगना चाहिए और उसकी शान के मुताबिक मांगना चाहिए, और हर हाल में हमें अल्लाह ताला से ही जुड़े रहना चाहिए। कनेक्टिविटी विद द गॉड। दोस्तों, ये जो 6 नंबर है इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लक्ष्मी लॉक भी कहते हैं। ये नंबर दौलत को अपनी तरफ खींच के रखता है, यानी कि लॉक करके रखता है। दोस्तों, आप आ जाते हैं कि हमें 7, 8, 9 को कहाँ कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है। इस तरीके को बड़े ध्यान से और गौर से समझिएगा ताकि आपको फायदा हो सके। दोस्तों, हम 7, 8, 9 नंबर का यूज भी 7, 8, 9 डेट्स में ही करेंगे, और इसको एक खास जगह पर लिखना भी है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ब्लू कलर का पेन या मार्कर ले लेना है, और इसके साथ आप एक छोटी सी कॉपी ले लें, कोई पतली सी ही कॉपी ले लें। बस ध्यान रहे कॉपी या वो रजिस्टर नया होना चाहिए, इस्तेमाल शुदा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब आपके पास ब्लू पेन भी आ गया, नई कॉपी भी आ गई। अब आपने करना यह है 7 डेट को यानी 7 तारीख को 6 मरतबा किसी भी टाइम सुबह में अपनी वो विश लिखें जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस टाइम भी उठें। लेकिन अगर आप सुबह फजर में उठते हैं और अपनी विश लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसके बाद रात को सोने से पहले वही विश आप दोबारा से उसी कॉपी में 6 मरतबा लिखें। उसके बाद आपने यही तरीकेकार जो कि आपने 7 डेट को किया था, अब 8 डेट को भी करना है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। यानी कि सुबह में 6 मरतबा अपनी विश लिखनी है और वही विश रात को सोने से पहले 6 मरतबा कॉपी में लिखनी है। याद रहे कि ये सब आपने ब्लू पेन से लिखना है। उसके बाद आपने 9 डेट को यही सेम तरीकेकार करना है। दोस्तों, अब ये हो गया 7, 8, 9 नंबर, ये आसमानी तिजोरी का नंबर है। इन 3 नंबर से आप 3 दिनों में किसी भी किस्म की कोई भी बड़ी से बड़ी विश पूरी करवा सकते हैं। और दोस्तों, अगर कोई करना चाहे तो हर महीने 7, 8, 9 डेट्स को यही तरीकेकार कर सकता है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने कॉपी के अंदर अपनी कोई विश लिखनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक काम और भी करना है। अब जो मैं आपको बताने लगा हूं, इससे आपकी विश और भी जल्दी पूरी होगी। आपने करना यह है कि जब आप अपनी विश लिखेंगे सुबह में या शाम में, दिन में किसी भी टाइम,
ان 3 दिनों में 7, 8, 9 तारीख को किसी भी टाइम आपने अल्लाह ताला का एक नाम पढ़ना है और वो अल्लाह ताला का सिफाती नाम है या गनीयू। आप 7, 8 या 9 तारीख को दिन में किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। आपने 7 तारीख को पढ़ना है 106 मरतबा, यानी कि 106 टाइम या गनीयू पढ़ना है। और जब आप 106 को टोटल करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। फिर इसी तरह से आपने 8 तारीख को या गनीयू 107 टाइम पढ़ना है, यानी 107 बार तो पढ़ना है। और जब इनका टोटल करेंगे तो ये 8 नंबर बन जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह 9 तारीख को भी आपने या गनीयू 108 टाइम पढ़ना है, यानी 108 मरतबा पढ़ना है। टोटल करने पर नंबर 9 बनता है। यानी हमने 7, 8, 9 नंबर को 7, 8, 9 डेट्स में इसकी तरतीब दी है और अल्लाह ताला का नाम पढ़ते वक्त भी 7, 8, 9 टाइम्स का ध्यान रखा है। और जब हम 7, 8, 9 को सम करेंगे तो ये 6 बनता है, क्योंकि ये नंबर दौलत को अट्रैक्ट करता है। तो प्यारे दोस्तों, आप ये जिस तरह से मैंने आपको बताया बिल्कुल इसी तरीके से करके देखें। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपकी हर विश 3 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। और दोस्तों एक बात और भी जहन में रखें, आपने इन 3 दिनों में आपकी जो भी विश है उसको अपने जहन में दोहराते जाना है और वो दोहराना है प्रेजेंट टेंस में। यानी किसी घर लेने की ख्वाहिश रखते हैं तो आप ये कहें मुझे बंगला मिल गया या मेरा जैकपॉट लग गया। इस तरह की आपकी जो भी ख्वाहिश है बस आपने प्रेजेंट टेंस में अपने जहन में दोहराते रहना है। आप ये समझें कि मेरा ये काम हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला की जात तो देने पर है। जब आप ये सोचेंगे कि मेरा ये काम हो गया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात से आपका वो काम हो ही जाएगा। और अल्लाह ताला तो आपके गुमान के साथ है। आप जैसे ही गुमान रखेंगे अल्लाह ताला आपको वैसे ही अता करेगा। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा ये काम हो गया, मेरी ये विश पूरी हो गई, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी विश पूरी हो जाएगी। और इसके साथ एक काम आपको और भी करना है। आपने अपने सीधे हाथ की हथेली पर अंगूठे के नीचे वाली जगह पर, इसको उभारे ज़ोहरा भी कहते हैं, इस जगह पर आपने 7, 8, 9 नंबर ग्रीन पेन से लिखना है। इसको अपने हाथ पर लिखे रहने देना है। अगर हाथ वगैरह धोने पर मिट जाए तो आप दोबारा लिख लें, बस कोशिश करें कि हाथ पर लिखा रहे। और दोस्तों इन 3 नंबर की ये खासियत है कि आपकी जिंदगी में आपका कोई भी काम अटक गया हो, कोई भी मुश्किल पेश आ गई हो, कोई भी काम आपका नहीं हो रहा हो, तो बस आप अंगूठे के नीचे लिखें 7, 8, 9 नंबर। इस नंबर की ये खासियत है कि इसको लिखने से आपका वो रुका हुआ काम, आपका वो अटका हुआ काम इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा। लेकिन बस याद रहे कि आपने लिखना है ग्रीन पेन से और बस छोटा सा लिख लें। मसलन ऑफिस में आपको कोई मसला अटक गया है, कोई काम अटक गया है, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी खास काम के लिए जा रहे हैं, तो बस अपने हाथ पे लिखें 7, 8, 9। इंशाअल्लाह ताला आपका वो काम हो जाएगा। थोड़े दिन ही करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरी नजर आएगी। और जैसे कि आपको पता है कि ज़िलहज के बड़े 10 दिनों का आगाज हो चुका है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन 10 दिनों की बड़ी अहमियत है। और अगर आप इन दिनों में कोई विश मांगते हैं, कोई ख्वाहिश रखते हैं, तो आपको किसी नंबर, किसी कोड की कोई जरूरत नहीं होगी। इन 10 दिनों की तो इतनी ज्यादा खास अहमियत है कि आप बगैर किसी नंबर के, बगैर किसी कोड के अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवा सकते हैं। इसीलिए आप इन महीने की 7, 8, 9 डेट्स को किसी भी हाल में मिस नहीं कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी अपने बुर्ज के बारे में जान सके। और दोस्तों, अगर आप हमसे किसी बुर्ज के हवाले से जानना चाहते हैं या अगर आप अपने नाम के पहले हुर्फ के मुतालिक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।